بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم اس وقت بھاولپور میں ہیں، صبح کا ٹائم ہے، ناشتہ چائے وغیرہ سب ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارا نیکسٹ پلان کچھ یہاں کینٹ کے اندر ہوں، چونکہ میں تو کینٹ کا کوئی ایریا آپ کو نہیں دکھا سکتا میں آرمی ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ تو ابھی ہمارا پروگرام نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی کینٹ کے اندر تھوڑا سا گھومیں پھریں گے۔ اس کے لیے معذرت کہ میں آپ کو وہ کینٹ کا ایریا نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے باہر، کچھ محل ہیں یہاں کے نوابوں کے، ان میں ہم سیر کریں گے اور دیکھتے ہیں آگے کیا پلان بنتا ہے۔ ابھی کچھ فائنل پلان نہیں ہے۔ رات کو ہم یہاں باربیکیو وغیرہ کریں گے۔ جی دوستو، ابھی ہم یہاں سے بھائی کے گھر سے نکل رہے ہیں بچوں کو لے کے، تھوڑے ذرا مارکیٹ تک جانا ہے، کچھ فروٹ وغیرہ لینا ہے۔ تو ہی از حسن Hello. اینڈ یو wanna say something? Hello everyone. ہی از فرام فلپائن، یہ فلپین سے ہے۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں کہ میری جو وائف ہے ان کے بھائی کا بیٹا، انہوں نے فلپائن میں شادی کی ہے اور یہ ان کا بیٹا پاکستان آیا ہوا ہے۔ یہ جی کچھ فروٹ لے چکا ہوں میں، ابھی واپس اب گھر چلیں گے۔ جی دوستو، ابھی میں ذرا ریلیکس موڈ میں کمرے کے اندر ہی بیٹھا ہوں، ابھی ہم کہیں گئے نہیں، صرف یہاں کینٹ ایریا میں تھوڑا سا گھومے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں کینٹ کے اندر کا ایریا آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ تو ابھی بچے جو ہیں وہ پارک میں گھومنے گئے ہیں اور جھولے وغیرہ لینے، چھوٹی بیٹی تنگ کر رہی تھی تو وہ ساتھ ہی پارک ہے وہاں گئے ہیں، وہ ابھی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم باہر سیر کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور جو ایریا میں آپ کو دکھا سکا وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا۔ جی ابھی ہم دربار محل جا رہے ہیں، شام کا ٹائم ہے، چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ دربار محل جو ہے وہ رات کے ٹائم ہی دیکھنے والا ہے۔ دربار محل میں انٹر ہو چکے ہیں۔ ابھی گاڑی پارک کریں گے، اس کے یہ جی بارہ دری ہے اور میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اس کی شوٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی۔ یہاں کی کنسٹرکشن ہر چیز دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ یہ نواب تھے۔
11 and 12. Miscellaneous equipment in use of Bhavalpur State Arms. चाबी, ज्वेलरी बॉक्स, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो नवाबों के यूज़ में रही हैं। ये जी यूनिफॉर्म है। Stamps issued by State of Bhavalpur. یہ ہے جی ڈن ہل پائپ یوزڈ بائی نواب صادق محمد خان عباسی. کوائنس کلیکشن اسٹیٹ آف بھاولپور. یہ جی فروخ محل ہے، یہ اس وقت بند ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے. یہ جی نشاط محل ہے، ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں نور محل کی طرف. وہاں 7:20 پر شو ہو رہا ہے جس میں وہ ساری ہسٹری بتاتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے. جی ابھی ہم یہ دربار محل سے نکل رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں نور محل جہاں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوگا اور اس میں ساری ہسٹری بتائی جاتی ہے. لیٹس سی، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آپ بھی کیجیے گا. اس وقت ہم نور محل کے ایریے میں انٹر ہو چکے ہیں. جی اس وقت ہم نور محل کے باہر ہیں، لیکن اس وقت ہم لیٹ ہو چکے ہیں. لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہم نہیں دیکھ سکے، ہم ذرا 10 منٹ لیٹ پہنچے ہیں. ہمارے پہنچنے پر یہ دیکھیں یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، چیئرز وغیرہ، لیکن کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح. خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیمنٹ اور بند کا استعمال ہے. چاول، دال، ماش، برتن، اس محل کے دروازے، بیڈنگ اور فرنیچر کے لیے جو لکڑی استعمال کی ہے ساگوان کی لکڑی ہے، جو اس کو برما سے ایک سر خاص قسم کی لکڑی ہے، برما سے کی گئی تھی. اور سر یہ ٹائل اٹلی سے امپورٹ کی گئی. ایک ٹائل کس ٹکوں پر ملتی ہے، اس کو جومیٹرک پیٹرن میں ملایا گیا ہے. اس ٹائل کو اسٹرکچر ٹائل کہا ہے. اس محل کے کل 32 کمرے ہیں، جن میں 14 بیسمنٹ میں 5 اوپر اور 6 برآمدے پراپت ہیں. ابھی آپ جس نمبر میں کھڑے ہیں اس محل کا سب سے بڑا اس محل کا پورا رقبہ 44,600 مربع. آئیے ابھی آپ دے رہے تھے سپورٹ کیا گیا اور یہ آج بھی اصلی اور ورکنگ حالت میں موجود ہے. یہ نواز صادق فور نے اپنی وائف کو ایز اے گفٹ کے طور پر پیش کیا. ان 2 ستونوں پر 4 مونوگرام عبیدہ کیے گئے ہیں جو مختلف دہائیوں کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. یہ بھاولپور اسٹیٹ کا مونوگرام ہوا کرتا ہے. اس میں نظر آنے والے یہ 2 پرندے جن کو پیلی کین کے نام سے جانا جاتا ہے. ان پرندوں کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے بچوں کو بھوک لگتی تو آخری حد تک کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی چیز کھانے پینے کے لیے میسر نہ ہوتی تو یہ پرندے اپنے جسم کا گوشت نوچ کر اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں. یہ نواز صادق ان کے سامنے نواز صاحب کا اسٹیج ہوا کرتا تھا. ان کے دائیں اور بائیں ان کے بندرا اور امرا دربار کو سنا کرتے تھے. اوپر بلکنی میں ان کی فیملی دربار کو سنا اور دیکھا کرتی تھی. اس محل کی سب سے خوبصورت اور دیدہ دل چیز اس حال کی چھت ہے جس کی شیپ بیرل نما ہے اور یہ پھول ڈیگنا روم ہے اور اس کا نقش و نگار پھول کی پتیاں ہے.
जिनको वक्तन फक्तन रिफ्रेश किया जाता है। और हुकूमत 1866 से लेकर 1899 तक रहा। नवाज साहब ने ये मजेस्टिक रूम में तहरीक करवाया और नवाज साहब ने एजुकेशन के मॉडर्न निज़ाम से मुतारफ़ करवाया, जिनमें मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। नवाज साहब ने सादिकुल अखबार के नाम से हफ्तावार एक अखबार भी शाया करवाया और नवाज साहब ने 150 मील लंबा रेलवे ट्रैक भी बनवाया, जिसका मकसद था KP के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को आपस में मिलाना। 14 फरवरी 1899 में नवाज साहब का इंतकाल हो गया और नवाज साहब को इनके आबाई किला द्रावर के शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। नवाज साहब को 15 साल की उम्र में नवाबियत मिली और इसके साथ साथ उन्होंने बाल विक्टोरिया हॉस्पिटल भी तमीर करवाया और इसके साथ साथ दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फरह महल, मुबारक मंजिल और ईदगाह तमीर करवाई। इन तमीरात की वजह से नवाज साहब को इस रियासत का शाहजहां भी कहा जाता है। 1907 में 23 साल की उम्र में हज से वापसी के दौरान नवाज साहब का इंतकाल हो गया और नवाज साहब को इनके आबाई किला द्रावर के शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। इनका दौरे हुकूमत 1907 से लेकर 1955 तक रहा। नवाज साहब को 3 साल की उम्र में नवाबियत मिली और 1924 में 20 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी इसी नूर महल में की गई। नवाज साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेहतरीन दोस्त थे। 1947 में इस रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया और 1956 में इस रियासत को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर दम कर दिया गया और 1966 में नवाज साहब का इंतकाल लंदन में हुआ। नवाज साहब की मैयत को लंदन से पाकिस्तान लाकर मुकम्मल फौजी आज़ाद के साथ इनको भी इनके बाई किला द्रावर के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। के 5 बड़े शाही गेट को हाईलाइट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं द्रावरी गेट का मॉडल, ऊपर की जाना बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, बहरी गेट और लेफ्ट साइड में मुल्तानी गेट के मॉडल बनाए गए हैं। इन 5 बड़े शाही गेट को मज़ीद 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला सेक्शन मुकम्मल तौर पर सोशल वर्क को हाईलाइट किया गया है, जो नवाज साहब ने फलाह बहबूद के लिए काम करवाए, आवाम के लिए उनकी तस्वीर अवेदा की गई है। आपके दाएं जानब इकॉनमी को हाईलाइट किया गया है, इनका अपना अदालत का निज़ाम, ये बैंक, ये चेक इसी बैंक का चेक है और ये इनका अपना प्रिंटिंग प्रेस का निज़ाम होगा। और आपके बाएं जानब 1947 में इस रियासत के साथ इल्हाक के दौरान असली दस्तरदार हैं नवाज साहब और उनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाएं जानब शाही वर्दी के नमूने जो नवाज साहब के ज़रिए इस्तेमाल रहे, ये उनके बैंड वाले पहना करते हैं, ये नवाज साहब कोट, ये उनके दरबारी और एज ए कोर्ट ऑफिशियल जब कोई फैसला सुनाना होता तो उस टाइम ये पहना जाता। और आपके दाएं जहाँ एजुकेशन को हाईलाइट किया गया है, जिसमें सादिक पब्लिक स्कूल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी शामिल है, पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, एचिसन कॉलेज। इसकी जो ज़मीन है वो नवाज साहब ने वक़्फ़ की, लाहौर में है। इसकी जो ज़मीन है वो नवाज साहब ने वक़्फ़ की और ये मस्जिद नवाज साहब ने खुद तमीर की। और आपके बिल्कुल सामने बालपुर स्टेट आर्मी को हाईलाइट किया गया है और जिसमें फर्स्ट बाग इन्फेंट्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1956 में जब इस रियासत को पाकिस्तान में दम किया गया तो बालपुर स्टेट आर्मी को भी पाकिस्तान आर्मी में दम कर दिया गया और ये यूनिट्स आज भी पाकिस्तान आर्मी में मौजूद हैं और इनके नाम कन्वर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी नहीं। ये बिनर्स बालपुर स्टेट आर्मी के बिनर्स हैं और ये मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने वाले मेडल। ये तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार की निस्बत से है और ये नवाज साहब के ज़रिए इस्तेमाल है। इसको मुख्तलिफ सरमी में यूज़ किया करते थे। और ये 303 एंड 38 बोर रिवाल्वर ये नवाज साहब की आर्मी के प्राइमरी हथियार थे। ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल हो चुके। काबा, ये गिलाफ काबा 1935 का है, जो कि प्रिंस कमर अब्बासी ने नूर महल के लिए डोनेट किया। और जब नवाज साहब हज पे गए 1935 में तो नया तैयार करवा के साथ ले गए, जो पुराना उतारा गया उसका कुछ हिस्सा इनके नवासे हैं प्रिंस कमर अब्बासी, उनके पास मौजूद था तो उन्होंने नूर महल के लिए डोनेट किया। ये आखिरी नवाब सादत भाई और रॉयल मिलिट्री अकेडमी इंग्लैंड में ली गई यादगार तस्वीरें। टेबल, सोफ़ा और ये दाएं 2 चेयर ये 1882 में फ्रांस के शहर पेरिस से इम्पोर्ट किए गए थे और ये ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद। ये बेड रेप्लिका है और कहा जाता है नवाज साहब के ज़रिए इस्तेमाल सोने और चांदी का बेड हुआ। सिकंदर मिर्जा के साथ याद कर सकते हैं, लियाकत अली खान साहब के साथ, जनरल मूसा, जनरल यूब,
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ मज़ार कल इस्लामी के दौरान ली गई है। कारना में फ्लोरा और फौना को हाईलाइट किया गया है। ये ड्रेसिंग टेबल जो आपके नवाज थे, नवाज सादर कायद उनके दिन इस्तेमाल रहा, ये म्यूजियम कंडीशन में मौजूद है। इसको पॉलिश वालिश किया जाता है, लेकिन ये मैंने फर्स्ट किया। ये कल्चर को लाइक किया है, इतिहास के बाद उसके कल्चर को लाइक किया है। इसमें जो मिट्टी के बर्तन और दीगर सामान शामिल है। रेगिस्तानी इलाके का सामान 1924 में जब नवाज सादर फाइव की ताजपोशी दी गई तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको गिफ्ट किया। ये रेप्लिका जो असली है वो बालकनी क्लब में आती है। 8 सिलेंडर है, पेट्रोल से चलती है और इसमें 2 बर्थ बनाए गए हैं। जब नवाज साहब हज पे गए 1935 में तो इसी वैन पे गए। ये वर्किंग कंडीशन में जी जी अभी भी स्टार्ट हालत में। इसकी खास बात यह है कि ये आज भी स्टार्ट हालत में है। और इधर से कराची गए, आगे शिप के ज़रिए सऊदीया गए, आगे मक्का से मदीना इसको इस्तेमाल किया गया। इसमें 2 बर्थ भी बनाए गए हैं और वेंटिलेशन सिस्टम का निज़ाम उस टाइम AC नहीं था जिसमें। और ये फोर्ड कंपनी की है और आपके सामने है किताब। और पीछे फादर शाही बकरी है, ये नवाज साहब की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। इसमें 4 घोड़े लगाए जाते थे। अगर इसकी रफ्तार बढ़ानी होती तो इसमें 6 घोड़े भी लगा दिए जाते। और ये इसमें सिंगार शीशा और वेंटिलेशन सिस्टम और मुसल्ला मुहाफ़िज़ के गार्ड के बैठने की जगह और इसके साथ कोचवान के बैठने की कमानियाँ भी लगाई गई हैं बेंच से बचाने के लिए और जंप वगैरह ना लगे। तो और ये सारा नवाब थे। बिल्कुल। कोई अगर क्वेश्चन हो देंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। ओके। इस वक्त जी हम आए हैं PSO फुआरा चौक के पास है और पेट्रोल चूँकि ख़त्म हो चुका था तो रीफ़िल करवाने के लिए आए हैं। ये पेट्रोल डलवाने के बाद जैज़ काट ली है मैंने एक दुकान से और अभी अब घर की तरफ। बच्चों के साथ थोड़ी साइकिलिंग करने जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं इंशाल्लाह। चलो बच्चे लूडो एंजॉय कर रहे हैं। Six three. Oh, we bring out where? There 5 we are here. Bus. Tensionale. 3-1. जी तो अभी खाना वगैरह खा चुके हैं और चाय भी पी चुके हैं। चाय पीने के लिए मैं और भाई हम गए थे कैफ़े में, वो आपको नहीं दिखा सका क्योंकि आदमी रिस्ट्रिक्शन थी, वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, इसीलिए ज़रा मैं थोड़ा रिजर्व हूँ वीडियो बनाने के हवाले से। अभी बच्चे जो हैं वो लूडो एंजॉय कर रहे हैं और ये फाइका मेरे साथ बैठी है जो इस वक्त एप्पल खा रही है और एंजॉय कर रही है, खुश है। ये वही मेरी बेटी है फाइका स्मील जो नहर को लंबा पानी कहती है, आपने यही कहा था ना। और अभी जो है थोड़ी देर तक सो जाएंगे और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताएं
They are gonna die اور because research کائنڈلی is there. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. One, then they are تھینک یو one ویری more. مچ. اللہ حافظ.